Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. This is Ma'am Naseem, your science teacher. Today we are going to discuss a new chapter that is about chemical bonds. Dear student, before going towards the lecture, first of all, we have to learn about elements, compound, molecules, chemical bond. So what is an element? Element contain only one type of atom. For example, hydrogen is an element made up of hydrogen atom, oxygen is an element made up of oxygen atom, nitrogen is an element made up of nitrogen atom. Sometimes two or more atoms join together to form a molecules. So why atoms join together to form a molecules? Because their outermost shell is not completed. So that's why to get stability, what they have to do, they have to donate an electron or accept an electron or mutual sharing an electrons. The atom in a molecules are held together by chemical bonds. So when we talk about chemical bond, it is a strong force of attraction that join two elements, that join two molecules. So chemical compounds are made when two or more elements are joined together by chemical bond. These bonds are so strong that the compound behave as though it is a single substance. For example, I am going to give an example of sodium chloride. Dear student, when we talk about sodium, sodium is a metal and chlorine is a non-metal. But when sodium and chlorine react together, the force of attraction between sodium and chlorine is a chemical bond. It is so strong. So that's why sodium chloride, a new substance that is also known as a table salt, which is formed and it behaves like a single substance. So dear student, molecules and chemical formulas. So what is molecules? When two or more atoms join together, then they make a molecule. Molecules are different shape and size. They have different shape and size. They can be represented by atomic diagram, models, or chemical formulas. So what is chemical formula? A chemical formula tell us the number and type of atoms a molecule or a compound contain, and it is symbolic representation of a compound. A formula is written as the chemical symbol of the elements followed by a number indicating the number of atoms of each element. Dear student, when we talk about, I am giving you an example of glucose. So the actual formula of glucose is C6H12O6. So there are 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. The force of attraction between these different type of atoms is known as a chemical bond. So what is a chemical formula? It is a symbolic representation, like carbon, hydrogen, and oxygen are symbolic representation. It tells us that how many atoms are present. For example, 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, 6 atoms of oxygen are formed in glucose. So this is hydrogen molecules. A molecule of hydrogen contain 2 hydrogen atoms joined together. Therefore, the formula of hydrogen is what? H2. So the symbol of hydrogen is H. Another oxygen molecule. A molecule of oxygen contain 2 oxygen atoms joined together. Therefore, the formula of oxygen gas is O2. The symbol is O. So nitrogen. A molecule of nitrogen contains 2 nitrogen atoms joined together. Therefore, the formula of nitrogen gas is N2. Now, dear student, I think you are well aware about this one. According to your syllabus, when we talk about the noble gases, they belong to group 8 element. They are considered as a noble gases because their outermost shell is fully completed. They cannot lose, gain, or share their electron easily. Now, dear students, what are ions? In some chemical reaction, the electrons that surround the nucleus move from one atom to another. An atom with one or more additional electron is called negative ion or anion. An atom with has lost one or more electron is known as positive ion or cation. Example of positive ion include sodium because it also always donate electron. एज यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस वन, हमेशा मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. सो सोडियम इज़ अ मेटल, आयरन इज़ अ मेटल,
they have negative charges because they donate their electrons. Example of negative ions include chloride and bromide. So when we talk about sodium and iron की जब हम बात करते हैं तो ये मेटल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. सो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरीन या क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, ये नॉन मेटल्स है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. Metals atoms lose electron in chemical reaction, so their atoms become ion with a positive charge. Non जो metals होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को टू बिकम नेगेटिव चार्ज. ओके डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट आइंस कब बनते हैं, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तब आइंस बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बनते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन की हम जब बात करते हैं, व्हेन सोडियम एंड क्लोराइड आर रिएक्ट टुगेदर देन दे मेक अ सोडियम chloride, sodium chloride, that is a common table salt. Now dear student, what happen when we talk about sodium, इसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई थिंक यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस वन. सोडियम के पास 11 होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकेंड शेल में 8 होंगे और लास्ट शेल में 1 होगा. सो 1 अनस्टेबल है. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरीन, इट हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट शेल कंटेन 2, सेकेंड शेल कंटेन 7, आउटरमोस्ट शेल कंटेन 7. सेकेंड शेल कंटेन 8 एंड आउटरमोस्ट शेल कंटेन 7. तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसको देगा, क्लोरीन को देगा. तो सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में रहेंगे और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी 8 होंगे. तो दोनों किस रूल को फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, तो दोनों स्टेबल होंगे. Now dear student, what is a combining atom in valency? Elements combine or bond during chemical reaction to fill the outer shell of their atoms. An atom is more stable when its outermost shell is completely full. When two or more elements bond, they form a compound. The molecule of compound are all the same, but they contain atom or more than one एलिमेंट्स. जिस तरह से मैंने आपको बार बार सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टुगेदर देन दे मेक अ सोडियम क्लोराइड, इसकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये एक बॉन्ड पैदा करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. और ये बॉन्ड क्यों पैदा कर देते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए. देखा जाए तो सोडियम एक मेटल है जबकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है. ये है डिफरेंट, लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है. सो व्हाट इज वैलेंसी डियर स्टूडेंट्स? वैलेंसी डिस्क्राइब्स हाउ easily an atom can bond with another atom or molecule. Valency is based on the number of electrons that are lost, gained, or shared by atom during a chemical reaction. Now dear student, when we talk about magnesium, the number of electrons in magnesium is 12. So outermost shell में मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2. तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा. When we talk about fluorine belongs to group 7 element. Fluorine and chlorine both belongs to group 7 element. They are considered as a halogen gas. They are poisonous substance and they are most reactive gases. So fluorine has जो है इसके outermost shell में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो however some become stable by gaining 1 electron, so its valency will be 1. Element in the same group of the periodic table have the same valency, and this is always related to the number of electron in their outer shell. Noble gases have a valency of 0 because they do not combine with other elements. Now dear student, valency can be used to find the chemical formula of compound. For example, यहाँ पे देखिए, what is the formula of calcium chloride? कैल्शियम इज बिलोंग्स टू ग्रुप 2 बिकॉज इसका वैलेंसी भी क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे. और क्लोरीन का जो आपको पता है बिलोंग्स टू ग्रुप 7 इन पीरियोडिक टेबल, और इसका सिंबल क्या है, Cl है. सो द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बाय यूजिंग वैलेंसी फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड आपको यहाँ पे देंगे. तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है. सबसे पहले आपको सिंबल गिवन नहीं होंगे. सोडियम फॉर एग्जांपल फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला बाय यूजिंग
बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड का फार्मूला गिवन नहीं होगा, उसका रिटन नेम होगा। तो आपने फार्मूला आपको पता होनी चाहिए कि सोडियम क्या 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 है, Na है, क्लोरीन का क्या है, Cl है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी दे सकते हैं, तो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या है, Mg है। और ऑक्सीजन का क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg है, और ऑक्सीजन का क्या है, O है। यहाँ पे देखिए CaCl। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट कैल्शियम, कैल्शियम के वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि क्लोरीन के कितने होते हैं, 1। और इसको आपने स्वैप अप करना है, फिर नीचे फार्मूला लिखना है। ठीक है, SVSDF का हमने कहा था डिवीजन भी हो सकती है। अगर इवन नंबर है, अगर नंबर एक दूसरे से डिवाइडेड सेम नंबर से हो सकता है तो आपने वहाँ पे डिवीजन ज़रूर करना, अगर नहीं होता है तो इसी तरह ही फार्मूला को आपने लिखना है। Now dear student, chemical bonds, elements which lose or gain electron easily tend to form compound by ionic bond. Other elements form compound by sharing electron. This is known as covalent bond. Dear student, when we talk about chemical bonds is a strong force of attraction जो दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जुट के रखता है, या दो एलिमेंट्स को। Now dear student, there are two type of bonds, ionic bond and covalent bond. आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, एलिमेंट क्या करता है, लूज करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, या कंप्लीटली लूज करता है या कंप्लीटली गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ये आयनिक बॉन्ड होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का हमने प्रीवियस जो है टॉपिक में शेयर किया था। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर की शेयरिंग होती है। अगर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर हाइड्रोजन भी, अगर कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो हाइड्रोजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन के साथ शेयर करेगा। सो आयनिक बॉन्ड व्हेन एन एटम लूजेस an electron to another atom, it changes. The lose of one electron leaves the atom with all the protons but one less electron. This make an atom with a positive charge, a positive ion या cation. An atom that gains an electron become a negative ion with a strong negative charge. In ionic bonding, positive ion and negative ions are pulled close together by a strong force. That strong force is known as electrostatic force of attraction. नाउ डियर स्टूडेंट, मैंने बार बार आपको सोडियम एंड क्लोरीन का एग्जांपल दिया। ठीक है, यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन का अपीयरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देखें, सोडियम इज़ अ रिएक्टिव ग्रे मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ स्मेली पॉइजनस गैस व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर। आप यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन दे रिएक्ट, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड पैदा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय सोडियम एंड गेन बाय क्लोरीन। द रिएक्शन इज़ वेरी विगरस एंड वाइट क्रिस्टल्स of sodium chloride common salts are formed. Sodium chloride is called an ionic compound. Another यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की। जब हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम से गेन करता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अभी आपको पता चलेगा। मैग्नीशियम के पास कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद वहाँ पे इंक्रीज हो गई, जबकि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई। यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है क्रॉस एंड डॉट मेथड के ज़रिए। ठीक है, सोडियम एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव बनता है, जबकि क्लोरीन एटम गेन करता है और यह नेगेटिव जो है क्लोराइड आयंस फॉर्म होते हैं। डिट्यूनोन यहाँ पे देखे बेटा, आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ए लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दम, so therefore ionic compound have high melting and boiling point. This statement is too much important. ये आप ज़रूर पढ़े, पेपर में आ सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेम एटम के बीच में हो सकता है और डिफरेंट एटम के बीच में हो सकता है। जिस तरह क्लोरीन का यहाँ पे देखिए, क्लोरीन का फार्मूला क्या है बेटा, Cl2 है। इट मीन्स दैट देयर आर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो दोनों क्लोरीन एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में, एक चाहिए। तो वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वाटर का देखे बेटा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। A water molecule is made when 2 hydrogen atoms share their electrons with 1 oxygen atom. This gives each hydrogen atom 2 electrons, and oxygen has now 8 electrons in its outer
मॉशल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन की हम जब बात करते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, H2। सो फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे देखें अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आफ्टर मॉशल को कंप्लीट करने, एक चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो चाहिए। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग के जरिए, म्यूचुअल शेयरिंग के, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए वो अपने आफ्टर मॉशल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस जो टॉपिक में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता दूंगी, जो प्रीवियस पेपर में बार बार आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ा करें डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केमिकल बॉन्ड्स, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ एन एलिमेंट, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ एन एटम, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट, ये आप लोग प्रीवियस ग्रेड 6 में भी पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, इसका आप ज़रूर पढ़ें। मॉलिक्यूल का आपको पता चल गया, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बनता है। आइंस के बारे में आपको पता चलना चाहिए बेटा, जब कोई एटम डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज उसके ऊपर आता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज आता है। कंबाइनिंग एटम एंड वैलेंसी, दिस टॉपिक इज़ टू मच इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी आपको एक कंपाउंड देंगे, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग वैलेंसी फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले सिंबल, फिर वैलेंसी, फिर स्वैप अप, फिर फार्मूला। उसके बाद बेटा यहाँ पे आप लोगों को पता चलना चाहिए व्हाट इज़ अ, यहाँ पे बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है मैग्नीशियम और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आगे कोवेलेंट बॉन्ड का भी वही है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, सेम एटम्स के बीच में भी होता है, डिफरेंट एटम्स के बीच में भी होता है। तो ओवरऑल ये आप लोगों ने पढ़ना है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन के थ्रू भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर थोरली स्टडी करना है। एमसीक्यू भी आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।